السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر عطا کر دے۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ دنیا میں غلبے انہی کو ملتے ہیں جو آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا میں کامیاب وہی ٹھہرے ہیں جن کے دل کی تمنا اور آرزو جنت ہو۔ دنیا میں بڑے کام وہی کرتے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، جنہوں نے اللہ کی رضا تلاش کی ہے۔ دنیا میں تاریخ میں انہی کو جگہ ملی جو دنیا کے بندے نہیں بنے، جو اللہ کے بندے بنے۔ جو دنیا کے کھیلوں میں پڑ گئے، دنیا کے آرائش و زبائش ان کا مطمع نظر بن گئی، سوائے ناکامی کے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ دنیا اتنی اچھی ہوتی، یہ پیسہ اتنا اچھا ہوتا، یہ بڑے بڑے گھر اگر بہت بڑی نعمت ہوتی تو سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتی؟ انبیاء علیہ السلام کے پاس۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں کس کو دی؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے ساری نعمتیں آپ کو دے دی۔ وہاں تو 2 مہینے کا فاقہ ہے، وہاں تو کھجور کا چھپر ہے۔ تو میرا بھی نہیں مانتا کہ میں دنیا چھوڑوں اور دنیا کی محبت مجھ پہ غالب نہ آئے اور میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں۔ دنیا صرف جتنی رہنی ہے اتنی لے لیں، اس سے زیادہ نہ بڑھے، ضرورت کے مطابق، خواہشوں کے مطابق نہیں۔ خواہشات کا بندہ تو برباد ہو جاتا ہے، نہیں چل سکتا۔ بڑے بڑے لوگ دلدلوں میں دھستے چلے جاتے ہیں، ایک پاؤں رکھتے ہیں اگلا پاؤں اس سے گہرا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خواہشوں کے غلام ہو گئے۔ ایک گھر ہے، اب 2 چاہیے، پہلے ایک شہر میں ہے اب دوسرے شہر میں چاہیے، اب بچوں کے لیے چاہیے، ایک گاڑی ہے 3 گاڑیاں چاہیے، اتنا پیسہ ہے اتنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا، صرف خواہش ہے۔ بھاگ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، مشینیں بنے ہوئے۔ تعلقات کی بنیاد اللہ، رسول، دین، نماز ہے، پیسہ۔ یار فلاں سے میری دوستی، پیسہ بڑا اس کے پاس، گاڑی بڑی اچھی ہے اس کی، روٹی بڑی اچھی کھلاتا ہے، تحفے بڑے قیمتی دیتا ہے، کپڑے بڑے اچھے پہنتا ہے۔ مسلمانوں یہ غلاموں کی سوچ ہے، یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے۔ یہ انتہا کی پست سوچ ہے، نیچی ترین سوچ ہے کہ بندہ صرف دنیا کے بارے میں لوگوں کا سوچے، سٹیٹس ہی دنیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین شخص ہے جس کے 2 چہرے، ایک بندے سے ایک طرح ملتا ہے اور دوسرے بندے سے دوسری طرح ملتا ہے۔ غریب آ گیا تو موڈ آف ہو گیا، امیر آ گیا تو اسے باجی بنا لیا، پیسے والا آ گیا تو آنکھیں بچھا دی، غریب آ گیا تو دروازہ نہ کھولا۔ امیر کی غلطی سے مس کال آ گئی تو 10 دفعہ فون کرنا، غریب 10 دفعہ فون کرے تو 1 دفعہ بھی نہ سننا۔ کا بدترین شخص ہے، بدترین شخص ہے جس کے 2 چہرے ہیں، جو 2 چہروں کے ساتھ ملتا ہے، غریبوں سے اور طرح اور امیروں سے اس کا معیار پیسہ، اس کا معیار پیسہ ہے۔ پیسے والوں کے پیچھے بھاگنا، پیسے کی جستجو میں رہنا، پیسے کی کو عزت سمجھنا، معیار پیسے کو سمجھنا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، ہمیں قرآن مجید بہت پڑھنا ہے، ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ بہت کرنا ہے، ہمیں سیرت کو بار بار کھنگالنا ہے تاکہ ہم اپنی تربیت کر سکیں۔ عمل وہی کرے گا جو علم حاصل کرے گا،
اور عمل وہی کرے گا جو تربیت کی نیت سے کچھ باتیں سیکھے گا. کچھ جمعے میں آتے صرف سننے کے لیے آتے, سیکھنے کے لیے, تربیت کے لیے نہیں آتے. نہیں میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہمیں تربیت کرنی ہے اپنی اپنی اولاد کی, اور انہیں بتانا ہے ہم اس دنیا میں جینے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے. جس دن یہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا, یہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا کہ ہم جینے کے لیے نہیں آئے, ہم یہاں سے جانے کے لیے آئے. ہم یہ دنیا بنانے نہیں آئے, ہم آخرت کمانے آئے ہیں. دنیا کے گھر ہمارا مقصد نہیں ہے, جنت کے محل ہمارا مقصد ہے. دنیا کی سختی معمولی ہے, قیامت بہت سخت ہے. دنیا کی گرمی کچھ نہیں کہتی, قبر کی گھٹن بہت زیادہ ہے. دنیا کی بھوک بڑی معمولی ہے, جہنم بہت سخت ہے. جہنم بہت سخت ہے, ہمیں جہنم کو پڑھنا ہے, ہمیں جنت کی نعمتوں کو پڑھنا ہے, ہمیں قیامت کی ہولناکیوں کو بار بار پڑھنا ہے. ہم نے ایک دوسرے کے سامنے قیامت کے تذکرے کرنے, ہمیں ایک دوسرے کو آخرت کی فکر دلانی ہے, ہمیں اپنے بچوں کو آخرت سمجھانی ہے. ہم تو ہر وقت ان کو دنیا سمجھاتے ہیں. بیٹا تیرا کاروبار نہیں چل رہا, بیٹا تو پیسے نہیں کما رہا, تم ویلے رہتے ہو. وہ نماز نہ پڑھے کوئی فکر نہیں, وہ دکان پہ نہ جائے فکر ہی فکر ہے. وہ قرآن نہ پڑھے غم نہیں ہے, وہ اسکول نہ پڑھے غمگین ہے. وہ نیکی نہ کمائے پرواہ نہیں ہے, وہ پیسے نہ کمائے گھر میں جھگڑا پڑا ہوا ہے. بیوی خامد کو بیوی کی روٹی کی فکر ہے, یہ روٹی کس طرح کی پکاتی ہے, یہ نماز کس طرح کی پڑھتی, اس کی فکر نہیں ہے. بیوی کو خامد کے پیسوں سے غرض ہے, اس کے تقوی ایمان کی اس کو کوئی فکر نہیں. بتا پیسے کتنے لایا, پیسے, ہم پیسوں کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یہ جو دنیا والے ہیں نا, ان کو صرف دنیا ملنی ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون. جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں نا, وہ بات ہی دنیا کی کرتے ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا, ان سے موت کی بات کریں, آخرت کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تانوں مرن تو علاوہ کوئی گل نہیں آندی. ہم دنیا میں جینے کے لیے 4 دن آئے, تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو, ہمیں نہیں مرنے سے ڈر لگتا. ہم نہیں گھبراتے موت سے. بھائیو اتنی دیدہ دلیری لوگوں سے کہے نہ کریں, اللہ کو چیلنج نہ کریں. جو ڈر گیا وہ بچ گیا, جو ڈر گیا وہ بچ گیا. بچنے کا معیار ہی اللہ کا ڈر ہے. جو اللہ سے ڈر گیا وہ بچ گیا, کامیاب ہو گیا. جو بے خوف ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا. اللہ سے بے خوف نہیں ہونا, اللہ سے بے خوف نہیں ہونا, اللہ سے ڈر کے رہنا. وہ رب ہے, بڑی عاجزی سے اس کے سامنے رہنا ہے. وہ محبت بڑی کرتا ہے, وہ بڑا مہربان ہے, بخش دے گا, مگر ہمارا کام ڈرنا ہے. ہم اس کی شفقت کے طلبگار ہیں, ہم اس کی مہربانی کے طلبگار ہیں, ہمیں اس سے بخشش کی بڑی امید ہے, مگر ڈرتے بہت ہیں. جو ڈرتا رہے گا وہ بچتا رہے گا. تقویٰ کہتے ڈرنے کو نا, اور تقویٰ کہتے بچنے کو. تقوی کا مطلب ڈرنا بھی ہے, اور تقوی کا مطلب بچنا بھی ہے, پرہیزگاری. تو کم من کان یرید الحیات الدنیا, جو کیا چاہے گا, دنیا کی زندگی, وزینتہا. قرآن مجید کو پڑھیں, احادیث کو پڑھیں, دنیا کے پیسے اور چیز اور زینت اور چیز ہے. پیسے اور ہیں, پیسہ دکھانا, زینت, آرائش ایک ہے. ضرورتیں, روٹی ضرورت ہے, سواری ضرورت ہے, گھر ضرورت ہے, کاروبار ضرورت ہے, بچوں کی تعلیم ضرورت ہے. وہ ضرورت سے آگے دکھاوے پہ, زینتہا. وہ کہتے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں میرا گھر کس طرح کا ہے. قسم سے اتنا اتنا پیسہ گھروں پہ تھوپ رہے ہیں نا, شیشہ, لوہا, لکڑی, ٹائل, فرنیچر, 10-10 لاکھ روپے کا تو بستر لے کے آتے ہیں.
मत मारी हुई है, मिट्टी में पैसे जाया कर रहे हैं, लोहे में पैसा जाया कर रहे हैं और आखिरत की परवाह नहीं, दुनिया में जन्नत बनाना चाहते हैं। इतने इतने बड़े घर हैं और हू का आलम है, जिंदा बंदा उसमें कोई नहीं। एक बाबा बैठा है, एक माई बैठी है, औलाद सारी बाहर के मुल्क में, घर इतना बना दिया है कि उसको साफ नहीं रख सकते। मगर दुनिया चढ़ी पड़ी है कि लोग देख लें मेरी गाड़ी किस तरह की। सिर्फ वो गाड़ियां रखी हैं जिनके ऊपर बैठ के शादियों पे जाना है, होटलों में जाना है, ताकि लोगों के पास को पता हो मेरे पास गाड़ी कौन सी। इतनी मुझे तकलीफ होती, कई बंदे मोबाइल हाथ में लेके फिरते हैं, लोगों को पता हो कि ये आईफोन का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करता है। गाड़ी की चाबी जेब में नहीं रखेंगे, हाथ में रखेंगे, पता हो कि इसके पास गाड़ी कौन सी है। जीनता, दुनिया दिखाते हैं, एक एक कमाते फिर कमा के दिखाते हैं। नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम वहुम फ़ीहा ला युबख़सून। अल्लाह ताला कहते हैं हम उनको पूरे पूरे बदले इस दुनिया में दे देंगे, आखिरत में कुछ नहीं होगा। ये जो दुनिया के लिए जीते हैं, सूरह हूद है का कुछ नहीं, इनकी जिंदगी का मकसद ही दुनिया है। बस जीनता, दुनिया कमाते और दिखाते हैं। कोई कपड़ा दिखाता है, कोई गाड़ी दिखाता है, कोई मकान दिखाता है, औरतें जेवर दिखाती हैं, शादियों पे जाती, एक कपड़ा पहनना दूसरा, 8-8 लाख का सूट बिक रहा है, मत मारी गई है। 6-6 लाख का बर्तनों का सेट बिकता है, मत मारी गई इनकी। आखिरत बनानी हमने आखिरत बनानी है, आखिरत बनानी है, दुनिया में नहीं रहना। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो दुनिया वाले ना, नुवफ़्फ़ी इलैहिम अअमालहुम, इन्होंने जो किया कराया हम यहाँ हैं, इनको वहुम ला युबख़सून, कोई कमी नहीं करेंगे, सारा कुछ इस दुनिया में वापस करेंगे, दुनिया के चाहने वाले को दुनिया दे देंगे। उलाइकल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आखिरति इल्ला अन्नार। और इन लोगों के लिए आखिरत में सिवाय आग के कुछ भी नहीं है। ये दुनिया की जिंदगी मांगते थे, दुनिया की आसाइशें मांगते थे, दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत चाहते थे, कहा हम इनको आखिरत में नहीं देंगे सिवाय आग के। वह भी तमा सनाऊ, बड़ा खपे, बड़े काम काज किए, सब जाया किए। वह बातिल उम्मा कानू यामलून, जो अमल करते थे वो भी सारे बातिल हो गए, बेकार हो गए, इनका किया इनके कुछ काम नहीं आया, इनके अमल भी जाया हो गए, इनके कसब भी जाया हो गए, इनकी मेहनतें भी जाया हो गई, कुछ नहीं मिलना इनको आखिरत में। ये दुनिया के बंदे थे। एक हदीस हम जिहाद में बहुत पढ़ते हैं, पढ़ते ऐसा लगता है जैसे मुजाहिदों की है। नहीं मेरे बुजुर्गों भाइयों, ये मुजाहिदों की नहीं है, ये मुसलमानों की है। मुजाहिद भी तो मुसलमान होते हैं। सही बुखारी में लिखी है, सही मुस्लिम में लिखी है, किताबों की किताबों में ये क्या हदीस मौजूद है। हदीस की ताइसा अब्दुल दिनार व अब्दुल दिरहम व अब्दुल खमीसा इन उतिया रदिया व इल्लम युता सखिता। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बद्दुआएं नहीं देते थे, मगर दुनियादार इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उसको ऐसी बद्दुआ दी, हलाक हो गया दीनार का बंदा, दिरहम का बंदा, कपड़ों का बंदा। कुछ नहीं इसको कभी दिरहम, पैसे पैसे अगर इससे कुछ मिलता है खुश है, नहीं मिलता नाराज है। ऐसी बद्दुआ दी, कहा अगर इसके पांव में कांटा चुभे को निकाल लेना, इसको कांटे के बराबर भी तकलीफ हो तो इसका मददगार कोई ना हो। कहा ये हलाक हो गया, ये जलील हो गया। ये कपड़ों में इज्जत तलाश करता है, ये पैसों में इज्जत तलाश करता है, ये दिरहम दिनार को पैमाने बनाता है। मेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए ये कपड़ों वाला, इसको अपने दोशाले की पड़ी है। मेरी शेरवानी, मेरी अचकन, मेरी वेस्टकोट, मेरी टोपी, मेरे जूते, मेरे पैसे
कब बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। इसका मूड सिर्फ पैसे से ठीक होता है। इसको पैसा मिले ऐसे खिल जाएगा, ना मिले बत्ती बुझ जाएगी। मैं जनूबी पंजाब से आया, सुबह पहुंचा, महंगाई है, रुल गए, है ही कुछ नहीं, मरे पड़े हैं। और मैंने कहा छोड़ो बातें, कोई शुक्र है तुम्हारे पास अल्लाह ने दिया। इतना फल मुल्क में पड़ा है कि कोई खरीद नहीं सकता। दुनिया के महंगे फल, सेब, अंगूर, अनार रेहड़ियों पे, फुटपाथों पे पड़े, शुक्र कोई नहीं। जब मिलना है ही नहीं, हालात बहुत खराब है। अल्लाह ताला कहते तू कहता रहे हालात खराब है, हम करते जाएंगे हालात खराब। तुझे मिले तो खुश है, ना मिले गुस्सा मुंह फूल जाता है। इसका एक ही खुश रखने का तरीका, इसको पैसा दो। शाम को दिहाड़ी अच्छी लग गई, ये बड़ा फ्रेश है। जिस दिन इसका कारोबार में थोड़ी सी 19 सिक्की हो गई, ना इसको नमाज याद है, ना इसको दीन याद है, ना अल्लाह की नेमतें याद है, इसको फिर कुछ याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं। फरमाया ये हलाक हो गया, ये जलील और रुसवा हो गया। आगे क्या फरमाया? खुशहाली पैसों वालों के लिए नहीं है। खुशहाली का म्यार क्या है? खुशबख्ती का म्यार क्या है? कामयाबी का म्यार क्या है? खुशकिस्मती का म्यार क्या है? तूबा, तूबा किसके लिए है? लिअब्दिन बिअनानी फरसिही फी सबीलिल्लाह, जो घोड़े की लगाम पकड़ के अल्लाह के रास्ते में चलता है, उसकी खुशकिस्मती। अशअस रअसुहु मुग़बरतन क़दमाहु, उसके बाल बिखरे हुए हैं, परागंदा हैं, और उसके पांव पे मट्टी पड़ी हुई है। यहां तो जूतों की चमक नहीं ना जान लेने देती। गाड़ी में बैठना तो जूता चमकाना है, दफ्तर में जाना तो जूता चमकाना है, घर में आना तो जूता चमकाना है। आए थे दिल चमकाने के लिए, बैठ गए जूते चमकाने। आए थे गुनाह धुलवाने के लिए, कपड़ों के धुलने से नहीं निकलते। बाल ही सेट नहीं होते, कसम से 5-5 हजार रुपए ला के टिंडा ठीक कराते हैं। 5-5 हजार रुपया देते हैं, 5-5 हजार रुपया का जो खुशकिस्मत है हमारे नजदीक, वो तो लगाम पकड़ के अल्लाह के रास्ते में चलता है। उसके बाल परागंदा हैं, बाल उसके बिखरे हैं, कदमों के ऊपर उसके मिट्टी पड़ी है। अमीर उसको कहता है लश्कर के पीछे चल, वो पीछे चल पड़ता है। उसे पहरे पे खड़ा करो, वो पहरे पे खड़ा हो जाता है। इतना कमजोर बंदा है, अगर वो किसी चीज की इजाजत चाहे, उसे इजाजत ना मिले, वो सिफारिश करे तो सुनी ना जाए। मगर तूबा, खुशखबरियां इनके लिए हैं जो कपड़ों के पीछे पड़ गए, जो पैसों दिरहमों दिनार के सिलसिले में पड़ गए। कहा कुछ नहीं, ये हलाक हो गए, बर्बाद, इनके पल्ले कख नहीं। ये कहते करोड़ मेरे पास है, अरब मेरे पास है, खरब मेरे पास है, फैक्ट्री मेरे पास है। अगर ये अल्लाह का बंदा ना बना, अगर अल्लाह का बंदा बन गया, फैक्ट्रियां नेमत बन जाएगी। अगर अल्लाह की नाफरमानी की, सिवाय हलाकत के कुछ नहीं। ये सब कुछ ठीक हो सकता है, मैं आगे हदीस बयान करूंगा, अगर हम अल्लाह की तरफ आ गए। दीन बचाना है तो दुनिया की मोहब्बत निकालनी पड़ेगी। दीन नहीं बचना, दुनिया के साथ दीन नहीं बचता। दुनिया रख सकते हैं, दुनिया की मोहब्बत नहीं रख सकते। पैसे हो सकते हैं बंदे पे, पैसे की मोहब्बत नहीं हो सकती। कपड़े अच्छे पहन सकता है बंदा, मगर अच्छे कपड़ों की गुलामी नहीं कर सकता। यह फलसफा इस्लाम का। ये नहीं कि अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता, अच्छी गाड़ी नहीं ले सकता, उसकी गुलामी नहीं करेगा, उसको फख्र का सबब नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो नहीं मिलेगी तो कहेगा खज्जल हो गया, मेरे को है कि। वो इनका गुलाम नहीं बनेगा, इनकी मोहब्बत का शिकार नहीं होगा। इसी हदीस में बयान करूं का 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो जाए। भेड़िए भी कहते थे तो काफी था, मगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेड़िए कहा या भूखे भेड़िए कहा? भूखा भेड़िया तो इंतहा का खौफनाक है,
भेड़िया सिर्फ तो वैसे ही गाली है भेड़िया। यार तुम शेर है ना, शेर भी दरिंदा है, मगर शेर किसी को कहे खुश हो जाता है, भेड़िया कहे तुम। शेर भी दरिंदा है, चीता भी दरिंदा है, मगर किसी को चीता कहे वो खुश हो जाता है, किसी को शेर कहे वो चौड़ा हो जाता है, और किसी को भेड़िया कहे वो सर फाड़ देता है। तबाही की अलामत है, खूनखारी की अलामत है, बर्बादी की अलामत है। का दो भूखे भेड़िए किसी बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो जाएं, इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना नुकसान किसी आदमी के दिल में माल की मोहब्बत आ जाए, माल की हिर्स पैदा हो जाए, ओहदों का लालच पैदा हो जाए। जितना दीन इसका बर्बाद होगा ना, जितना दीन इसका जाया होगा, वो बकरियां इतनी जाया नहीं होगी, वो भेड़िए बकरियों का वो नुकसान नहीं करेंगे जितना अपने दीन का नुकसान ये बंदा कर लेगा जिसके दिल में किसकी मोहब्बत आ गई? पैसों की, माल की हिर्स, मोहब्बत और आ जाए, और आ जाए, और ओहदे, मुझे ये ओहदा मिल जाए, मुझे ये कुर्सी मिल जाए, मुझे ये मनसब मिल जाए। ये मनसुबों वाले, ओहदों वाले हर वक्त ही, जी मैं वहां तकरीब में आऊंगा तो मुझे कुर्सी कौन सी मिलेगी। मैंने कई बंदों को देखा, वो खत लिखते हैं, मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, आप अपने स्कूल की तकरीब में मुझे चीफ गेस्ट बनाएं। ओहदे मिल जाएं, ओहदे मिल जाएं, ये ओहदे मिल जाएं अल्लाह के दीन के लिए नेमत है। अगर दुनिया की मोहब्बत में लिए तो कहा इतने तो वो भेड़िए भी बकरियां बर्बाद नहीं करेंगे जितना इसका दीन बर्बाद हो जाएगा। कुरान मजीद में फरमाया, तुम किस चक्कर में पढ़ते हो, तुम किस सोच में पढ़ते फिरते हो। इलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहबुम व ज़ीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद। ये जिहाद की बातें चल रही हैं सारी, सूरह हदीद है। तुम दुनिया दुनिया करते हो, अल्लाह कहता है क्या? कहता अल्लाह कहता हमने बनाई है ना, हमसे पूछो क्या है। मैंने पिछले जुमे कहा था मच्छर का पर नहीं है, फरमाया अगर ये मच्छर का पर होता किसी काफिर को घूंट पानी ना नसीब होता। पूरी दुनिया मच्छर का पर नहीं है, पूरी दुनिया मच्छर का पर नहीं। कहा जान, समझ, देख, इलमू, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुम व लहब, दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बनाने वाला इसको खेल तमाशा कहे, हम इसको हकीकत कहें, दोनों में से किसकी बात मानी जाएगी? जो खालिक है, मालिक है, जिसकी तखलीक है, वो कहता है ये सारी जिंदगी खेल तमाशा है, हम कहते हैं ये हकीकत है। ये दुनिया तो फिर दुनिया है ना। जिसने बनाई है वो कहता है खेल तमाशा है। वसीनतुम व तफाखुरुम बैनकुम, जीनत, फखर एक दूसरे के ऊपर या दिखावा करते हैं, फखर एक दूसरे पे, तेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास पैसा ज्यादा है, चुपते हैं एक दूसरे के साथ। मोहल्ले में एक का घर अच्छा बन गया, अपना तोड़ के बनाते हैं। एक औरत ने शादी में कपड़े एक पहन लिए, घर में आके लड़ाई होगी, उसने इस तरह के पहने थे, मुझे क्यों नहीं लेके देते। तफाखुरुम बैनकुम, फखर, जीनतें, व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, करते क्या हो कि माल की कसरत हो जाए, औलाद की कसरत हो जाए। इसी दुनिया में अल्लाह कहता कख भी नहीं है, खेल तमाशा सारा। बनाने वाला खेल तमाशा कहे और जीने वाले हकीकत कहें, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता, इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। बनाने वाले ने कह दिया सब खेल तमाशा है, या जो तुम जीनतें बनाते फिरते हो ना अपनी, और फख्र करते हो माल और औलाद की कसरत में, अल्लाह कहता कुछ नहीं, खेल तमाशा है। अनफाल में कहा सहाबा इकराम को, सबको, अबू सुफियान का काफिला तिजारत था, तुरीदून अरज़द दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा, तुम दुनिया की जिंदगी चाहते हो,
तुम दुनिया के सामान चाहते हो, वल्लाहु युरीदुल आखिरा, अल्लाह ताला आखिरत चाहता है। तुम्हें दुनिया की चीजों की पड़ी है, तुम दुनिया के ताकुब में जीते हो, अल्लाह ताला आखिरत चाहता है। अल्लाह ताला की ख्वाहिश है कि तुम आखिरत पे चलो। अल्लाह अकबर। कई रवायतें हैं, मैं उसको मुख्तसर तरीन बयान कर देता हूं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास आई और आके अपनी चक्की चलाने की मुशक्कत का तज़किरा किया। हमारे मर्दों औरतों को क्या पता कि चक्की चलाना क्या होता है, जौ पीसना क्या होता है, और अपने हाथों के आबले दिखाए, अपने हाथों के छाले दिखाए, अपने हाथों के अट्टन दिखाए कि ये मेरे हाथों का हाल है। नबी की बेटी, नबी की बेटी, सही बुखारी में भी है, बाकी हदीसों में भी कहते हैं कि आके अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को अपने हाथ दिखाए, अपना दुख बयान किया, अपनी चक्की चलाने की मुशक्कत बयान की कि मैं इस मुश्किल में हूं। अल्लाह के नबी घर नहीं थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा कि फातिमा आई थी और यह कह गई रजी अल्लाह अन्हा। कितनी मोहब्बत होगी। फिर सुबह का इंतजार किया कि रात को ही चले गए। पैगाम मिला है, घर नहीं रुके, सीधे सैयदा के घर गए। हजरत अली फरमाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमने उठने की कोशिश की, हम बिस्तरों में लेट चुके थे, रात इतनी थी, हम अपने बिस्तर में लेट चुके थे, तो आपने हमें लेटे रहने का हुक्म दिया और हमें मना नहीं किया और हमारे दरमियान ही बैठ गए, हम दोनों के दरमियान बैठ गए। वल्लाह रावियों पे भी क्या हम पे एहसान है, एक लफ्ज नहीं छोड़ा। और सहाबी ने भी रिवायत बयान करते कहां तक गए, कहते हम आपके पांव की ठंडक अपने सीने में महसूस करते थे। आप हमारे बिस्तर में तशरीफ ले आए, हमारे दरमियान बैठ गए, आपके कदम, आपके पांव की ठंडक हम अपने सीने में महसूस करते थे। कहा फातिमा तुम आई थी रदी अल्लाह अन्हा। कहा बाबा ये मसला है। कहा फातिमा वो तो मैंने बदर के शहीदों को बांट दिए, जो गुलाम और लौंडियां आए थे ना, तुम कहती हो कि मेरी चक्की चलाने की वजह से मुश्किल है, तो गुलाम लौंडियां आई, कोई मुझे दे दे, वो बदर के शहीदों में बट गई हैं, उनके बच्चों में। तू क्या किया कर, औलाद को बंदा सबसे अच्छी चीज औलाद को देता है। तू थकी होती है ना, तेरे पास नौकर खादम नहीं है, तेरे हाथ में छाले पड़ गए चक्की चला के, तो रात सोते 33 सुभान अल्लाह, 33 अल्हम्दुलिल्लाह, 33 अल्लाह अकबर और 100वीं दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। एक रिवायत में कि 34 अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर, ये तेरे लिए लौंडी और गुलाम से बेहतर है। दुनिया मांगने गई थी, दीन दे दिया। बेटी ने नहीं कहा कि ये क्या दे रहे हैं, मैं थकी पड़ी हूं, आप मुझे तस्बीह बता रहे हैं। सैयदना अली उल मुर्तजा कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, हमने जिंदगी में फिर कभी ये छोड़ा ही नहीं। तस्बीह तो हमारे लिए भी है, रात को कितने लोग हैं जो करके सोते हैं। हमारे तो नमाज पढ़ के जिक्र करने वाले लोग कितने। मैं कल परसों पता नहीं कहीं मिला भाइयों से, मैंने उनसे कहा कि सिर्फ ये बताओ आखिरी दफा हाथ उठा के सही तौर पे दुआ कब की है। ना दुआ का वक्त है, ना जिक्र का वक्त है, पर दुनिया, हम तो मस्जिद में भी आके सजदे में भी दुकान का हिसाब करते हैं। मेरा हाल तो यही है, मस्जिद में आके भी मस्जिद में नहीं होते, गम दुनिया के लगे होते हैं। तो पूछने वाले भी कमाल के लोग थे, कहने लगे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्या सिफ़ीन की रात भी आपको ये तस्बीह याद रही थी? कहा सिफ़ीन की रात भी, जंगे सिफ़ीन की रात भी मुझे नहीं भूली थी, उस रात भी मैंने ये तस्बीह की थी। किस कदर मुश्किल मरहला था, कहते उस वक्त भी की थी। दीन लेते थे, दीन लेते थे, दीन लेते थे। दुनिया तो क्या था, उनको आखिरत की लगी थी।
सैयद अब्दुर्रहमान बिन औफ के बारे में आता रजी अल्लाह तआला, ताजिर आदमी थे। ये वो लोग थे, सोना कुल्हाड़ों से कटा है, इतनी गनीमतें इनको मिली, इतना माल मिला कि सोना सुनारों ने नहीं काटा, लोहारों ने काटा है। रोजा था, खाना आ गया सामने, रोने लग गए। कहा ओहद के दिन मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हमसे अच्छे थे और उनके पास कफन नहीं था एक चादर के सिवा। हम सर पे डालते थे, पांव नंगे होते थे, हम पांव पे डालते थे, सर नंगा होता था, कफन में पूरी चादर नहीं थी अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास। और सैयदना हमजा हमसे अच्छे थे, यही हाल उनका था। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज अल्लाह ताला ने हम पे दुनिया कुशादा कर दी, आज अल्लाह ने दुनिया हम पे वसी कर दी, कहीं अल्लाह ताला हमारे अमाल का बदला दुनिया में तो नहीं दे रहा। आयत हमने क्या पढ़ी? डरते थे कि अल्लाह ताला कहीं दुनिया में ना दे दे। मन कान युरीदुल हयात दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अमालहुम, हम दुनिया में दे देंगे। दुनिया मिल रही फिक्र करें, दुनिया मिल रही फिक्र करें, कहीं दुनिया में तो नहीं फारिग हो रहे। कहते रोने लग गए, इतना रोए कि खाना पीछे कर दिया, रोजे के साथ थे, मैंने नहीं खाना, अपने साथियों को याद करके कि वो तो बगैर कफन पूरे के चले गए और हम पे इतनी दुनिया फराख हो गई, कहीं अल्लाह ताला हमें दुनिया में दे के फारिग तो नहीं कर रहा, हमने अल्लाह से आखिरत में लेना। पढ़ते जाएं, अपने घर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। छोटी छोटी चीजों पे तरबियत की है, बड़ी तो बड़ी है ना, छोटी छोटी चीजें। अम्मा जी आयशा कहती रज़ी अल्लाह अन्हा, घर में तशरीफ लाए, एक पर्दा लटका था, उस पर तस्वीरें थी। हदीस की तकरीबन किताबों में आपको ये रिवायत मिल जाएगी। तो अंदर आए, आयशा इस पर्दे को हटा दे, इस पर्दे को हटा दे, इससे मुझे दुनिया याद आती है। धारियों का किसी जगह लिखा तस्वीर, किसी जगह लिखा धारियों का पर्दा था, सिर्फ उस पे कोई नक्शो निगार थे। कहा इसको पीछे कर दो, इस पर्दे की वजह से मुझे दुनिया याद आती है। ये पहरे दिए अपने घरों के, ये पहरे दिए अपने घरों के। मैंने आगाज में बात की है कि इस्लाम तरबियत का दीन है। जो तरबियत के रास्ते पे चलेगा, अपने बच्चों को समझाएगा, अपनी जात को समझाएगा, अपने माशरे को, अपने साथियों को समझाएगा, वो कुछ बना जाएगा। गली बाती कुछ नहीं होना। आए अगली रिवायत चलते हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं, मेरे बाबा मेरे दरवाजे पे आए और वहीं से पलट गए। मेरे दरवाजे पे आए, जो बेटी का हाथ पकड़ते थे आने पे, अपनी जगह पे बिठाते थे, कहते मेरे दरवाजे पे आए और पलट गए, नागवार गुजरा। मैंने सैयदना अली से तज़किरा किया रज़ी अल्लाह तआला कि वापस चले गए। उनको तो क्या दिल में बनी होगी, फौरन आए कि क्या हुआ? का तुम्हारे घर पे एक पर्दा लटकता है, मेरा दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत से क्या लेना देना, मेरा दुनिया की इन चीजों से क्या लेना देना, मुझे वो नागवार गुजरा, मैं वापस आ गया। एक पर्दे की वजह से बीवी से कहा इसको हटा दे, मुझे दुनिया की तरफ तवज्जो जाती है, बेटी के घर दाखिल नहीं हुए, बेटी के घर दाखिल नहीं हुए। उन्होंने कहा, हजरत अली घर गए। क्या मैं कहता हूं, ये अल्लाह ने म्यार बनाए, ये लोग, ये सहाबी, ये जमाते सहाबा अल्लाह ने म्यार बनाई है। कहने लगी, आप उनसे पूछें आपका हुक्म क्या है, आपकी मर्जी क्या, इस पर्दे को छोड़ें, आप इसके बारे में फैसला करें, हुक्म क्या है। मेरी बेटी हो, वो कहे आपको क्या लगे, अब हम घर की चीजें ना बनाएं, हम ये ना करें, हम वो ना करें, हम तो फंस गए इसमें। क्या वल्लाह वो लोग थे। फौरन सैयदा फातिमा कहने लगी रज़ी अल्लाह अन्हा, अली उनसे जाके पूछ ले आपका हुक्म क्या है, आपका फैसला क्या, आप चाहते क्या है, ये पर्दा क्या, फैसला करें। का फलानी औरत जरूरतमंद है, उसके घर भेज दे, अपनी फिक्र नहीं है। जब फलानी औरत जरूरतमंद है, उसको ये पर्दा भेज दो, उसके काम आ जाएगा। मदीने के जरूरतमंदों की खबर किसको थी?
بدر کے شہیدوں کا خیال کس کو تھا؟ اپنی بیٹی کو نہیں ملا، بدر کے شہیدوں کے بچوں کو لونڈیاں غلام مل گئے۔ پردہ اتار کے یہ نہیں کہا گھر میں استعمال کر، کہ مدینے کی فلانی عورت ضرورت مند ہے، اس کی فکر کر۔ آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اکٹھے کر دیے۔ اے قریش، اے میری پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب، اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن لو، میں قیامت میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ لفظ سن رہے ہیں؟ میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا، میں تمہاری حمایت نہیں کر سکوں گا۔ 3 لفظ ہیں، سفارش، مدد، حمایت۔ میں قیامت میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، دنیا کے مال میں سے جو مجھ سے لینا لے لو، آخرت کی کوئی بات نہیں، اپنی اپنی ہے۔ اسی روایت کو آگے پڑھتے ہیں۔ کہ قریش کے لوگوں، توحید کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ کس چیز کے ساتھ اللہ کے عذاب سے بچو؟ توحید قبول کر کے، توحید کا دامن پکڑ کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو۔ اے قریش کے لوگوں، میں تمہارے معاملے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں تمہارے معاملے میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ یہ قریش کو کہا، پھر کیا کہا؟ اے عبد المطلب کی اولاد، میں تمہارے معاملے میں اللہ کے سامنے کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، میرے چچا، میں اللہ سے تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے سامنے قیامت کے دن تیرا مددگار نہیں ہوں گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، میں قیامت کے دن اللہ کے معاملے میں تیرا کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ دنیا کا کوئی پیسہ پوسا مجھ سے لینا، بات کر لے، آخرت اپنی اپنی ہے، اس کی فکر کر۔ یہ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں، اپنے خاندان کو کہہ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ بندہ اپنے خاندان کا سوچتا ہے، سب سے زیادہ بندے کو اپنے خاندان کی فکر لگی ہوتی، ان کو کہہ رہے ہیں۔ ایک ایک بندے کو ہمیں کہہ گئے، امت کو بتا گئے، میرا غم دنیا، میری فکر دنیا، میری پریشانی دنیا، میری صبح و شام میری سوچے دنیا۔ میں نماز میں بھی دنیا سوچتا ہوں، میں واش روم میں بھی دنیا سوچتا ہوں، مجھے خواب بھی دنیا کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ تم پہ تنگ دستی آئے گی، تم پہ بھوک آئے گی، تم پہ فقر آئے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے غم ہی نہیں ہے کہ تم پہ تنگ دستی آئے گی۔ اس سے بڑی کوئی بات ہے کہ میرا نبی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی فکر نہیں کہ تم پہ بھوک آئے گی، تم پہ تنگ دستی آئے گی، تم پہ فقر آئے گا، مجھے اللہ کی قسم اس بات کا غم نہیں کہ تم پہ بھوک آئے گی۔ میں کس بات سے ڈرتا ہوں؟ کہ تم پہ دنیا فراخ ہو جائے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ دنیا فراخ ہوئی، تم اس میں دھنس جاؤ گے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگ اس میں دھنسے، تم ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے مقابلے کیے، یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو اس نے ہلاک کیا۔ کہتے ہیں مجھے تمہاری بھوکوں کا ڈر ہے۔ یہاں ملک ڈرتے ہیں تو بھوک سے، حکمران ڈرتے ہیں تو بھوک سے، عوام ڈرتے ہیں تو بھوک سے، نعرے لگتے ہیں تو بھوک کے، پریشانیاں ہوتی تو بھوک کی، خبریں میڈیا چلتا ہے تو بھوک کے اوپر۔ میرے نبی کہتے ہیں بھوک مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کو پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں۔ کہ اللہ کی قسم مجھے تیری بھوک کی پریشانی کوئی نہیں، مجھے پریشانی یہ لگی کہ تو دنیا دار بنے گا، تو دنیا میں پھنسے گا، یہ دنیا تجھے پھنسا دے گی، تو اس میں پھنس جائے گا، تو اس میں پھنس جائے گا، یہ تجھے چھوڑے گی نہیں۔ بیٹی کو بتایا، بیویوں کو بتایا، خاندان کو بتایا، امت کو بتایا، کامیابی کا معیار آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں۔ فرماتے ہیں بندہ بڈھا ہوتا جائے گا،
जितना बूढ़ा होता जाएगा दुनिया की हिर्स, माल की दौलत इसमें और बढ़ेगी। दो चीजें जवान ही रहेंगी इसमें। जितना बूढ़ा होगा और दुनिया के चक्कर में पड़ेगा, जवानी में को खर्च करेगा, बूढ़ा हो गए तो कंजूस और हो जाएगा। और जितना बूढ़ा होगा इसकी उम्मीदें लंबी होंगी, इसकी जीने की हिर्स बढ़ेगी, मैं और जी लूं। बंदा बूढ़ा होता जाएगा और दो चीजें इसमें जवान रहेंगी, एक माल की हिर्स और एक जिंदगी की उम्मीदें, दुनिया की उम्मीदें। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी अल्लाह के वास्ते आपको इल्तिजा, एक हदीस सिर्फ सुन लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे तशरीफ लाए, सहाबा ने आपको घेरा हुआ था, तो आपने फरमाया मुझे डर लगता है कि दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मैं इससे खौफ ज़दा हूं कि दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत तुम पे छा जाएगी, तुम पे आ जाएगी। सहाबी तो सवाल करते थे, पूछते थे, उनका मकसद था एक। दरमियान में से एक बोला, कहने लगा क्या खैर के साथ भी शर आता है? भलाई के साथ भी बुराई आती? दुनिया तो अच्छी चीज है। जिस तरह मैंने कहा था, दिल में नहीं जगह देनी इसको, इससे मोहब्बत नहीं करनी, आ जाए तो रख लेंगे, मोहब्बत नहीं करेंगे, इससे प्यार नहीं करेंगे, इसके पीछे नहीं भागेंगे, इसको दिल में जगह नहीं देंगे, इसको बस इस्तेमाल करेंगे। ये मोहब्बत की चीज नहीं है। मोहब्बत रब से, मोहब्बत रब के रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहब्बत अल्लाह के दीन से। जो दुनिया में गालिब हुए वो वही लोग हैं जिन्होंने दुनिया से मोहब्बत नहीं की, अल्लाह से मोहब्बत की। तो कहा क्या नेकी के साथ भी शर आ जाएगा, खैर भी शर लाएगी? आप खामोश हो गए। तो सहाबी उस सहाबी से कहने लगे, तूने क्या बात की कि अल्लाह के नबी तेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते? आप तेरी बात सुन के खामोश हो गए, आखिर तूने कहा क्या? इतनी देर में वही के असरात आने लग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशानी से पसीना पूछा और फरमाया कि वो सवाल करने वाला कहां था। गोया ऐसे जैसे उसकी तारीफ की कि उसका सवाल अच्छा था। हदीस में लिखा, गोया उसकी तारीफ की। कहता जी मैं हूं। फरमाया दुनिया की मिसाल जो मैं तुम्हें देता हूं, जब बहार आती है, घास बहुत होता है, कुछ जानवर इतना खाते हैं कि हलाक हो जाते हैं या हलाकत के करीब पहुंच जाते हैं, खाते जाते हैं, आखिर आफर जाते हैं। और यह चारा उनको हलाक कर देता है या हलाकत के करीब पहुंचा देता है। एक ये है, ये रजदा नहीं है। और एक आम हरियाली में चरता है, आम चरागाह में। जब उसकी कुखें बाहर निकल आती, उसका पेट भरता है। हदीस में लिखा है वो सूरज की तरफ मुंह करता है, जुगाली करता है, पेशाब करता है, गोबर करता है, फिर जाके चरने लग जाता है। फरमाया जिसने ये माल जरूरत के मुताबिक लिया, जितनी उसको जरूरत है, फिर यतीम को दिया, फिर मुसाफिर को दिया, फिर मिस्कीन को दिया। 3 नाम लिखे हदीस में। जितनी उसको जरूरत उतनी लेता है, जमा नहीं करता, जितनी जरूरत उतनी लेता है। मेरे बहुत सारे दोस्त मिलने वाले, ताजिर मिलते हैं, डॉक्टर्स मिलते हैं, आम तबके के। मैं उनसे हमेशा कहता हूं यार अपने अखराजात पे एक लिमिट लगा लो। तुम्हारे महीने का खर्चा 50,000 है, लाख है, 5 लाख है, बस कर दो इससे बाद। एक घर चाहिए, 2 चाहिए, कोई लिमिट बनाओ, वरना ये दुनिया नहीं भरेगी, खा खा के आफर जाएंगे। का उसने उसके जो जरूरत के मुताबिक लेता है और फिर उसमें से किसको देता है? यतीम, मिस्कीन, मुसाफिर। दूसरा कौन है जो हक के बगैर लेता, जरूरत नहीं है, उधर से भी हाथ मारा, उधर से भी हाथ मारा। ये माल इसके लिए हलाकत बन जाएगा और क़यामत के इसके खिलाफ, क़यामत में इसके खिलाफ गवाह पेश होंगे। कुछ के माल, कुछ की चीजें उनके लिए जन्नत के लिए गवाह पेश होंगी और कुछ के माल कुछ नहीं मिलेगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने आपके सामने कुरान पढ़ा। तो अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें ये बता दे, समझा दे कि हमें दुनिया में इतना रहना है, जितना रहना उतना जमा कर लें। ये दुनिया सौखी नहीं है, ये जेल है। जन्नत को आजमाइशों के साथ ढांपा गया है और जहन्नुम ख्वाहिशों के साथ है।
جو خواہشوں کے رستے پہ چلیں گے وہ غلط رستے پہ چلیں گے. جن کو آزمائشیں آتی وہ پریشان نہ ہو. آزمائشوں کا رستہ جنت کا رستہ ہے, کامیابی کا رستہ ہے. یہی رستہ ہے جس کو پا کے ہم فاز و فوز کی عظیم نعمت کو پا سکتے ہیں. تو میرے بزرگوں بھائیوں, اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں. وہ دنیا دار نہ بنے, دیندار بنے, وہ آخرت کے بنے, وہ درہم کے بندے نہ ہوں, وہ دینار اور کپڑے کے بندے نہ ہوں, وہ اللہ کے بندے ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین.